sir. Yes, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please take a seat, please. Thank you, sir. What's your code? 31, sir. Sir, mask કાઢી લો. આ માસ્ક કાઢી શકો છો. પરિચય આપો. થેન્ક યુ સર. સર મારો કોડ 31 છે. મેં મારું ગ્રેજ્યુએશન વર્ષ 2017માં ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીમાંથી બેચલર ઓફ એન્જિનિયરિંગ ઇન ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીમાં કમ્પ્લીટ કર્યું. સર ત્યારે ફાઇનલ યરમાં મેં મારું પ્રોજેક્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક પબ્લિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સર્વિસીસ પર કામ કર્યું છે સર. ત્યારબાદ હું સિવિલ સર્વિસીસની પ્રિપરેશનમાં જોડાઈ છું. મીનવાઇલ સર હું એક સ્થાનિક સંસ્થા છે જે જીપીએસસી માટે ગાઈડન્સનું કાર્ય કરે છે એની સાથે સંકળાયેલી છું સર. અને મારો શોખ સ્વિમિંગ કરવાનો છે સર. અને મારું લક્ષ્ય ક્લાસ 1 અધિકારી બનીને લોકોને સર્વ કરવાનું છે સર. શોખ છે સ્વિમિંગ કરવાનો સર. સ્વિમિંગ સ્વિમિંગનો. તરવાનો સર. 2017માં પાસ થયા. જી સર. અત્યારે શું કરો છો? અત્યારે પ્રિપરેશન ચાલે છે, સાથે સાથે હું એક સ્થાનિક સંસ્થા છે એની સાથે જોડાયેલી છું જે ગાઈડન્સ આપવાનું કાર્ય કરે છે જીપીએસસીની એક્ઝામ્સ માટે. જીપીએસસીની એક્ઝામ માટે જી સર. એમાં સંકળાયેલા છો એટલે છોકરાઓને ના સર, નોટ એઝ અ ફેકલ્ટી, તો કોર્ડિનેટર તરીકે મેનેજમેન્ટ કરવાનું કંઈ પણ હોય એ રીતે. ઓકે. તમે ઇન્ફોર્મેશનમાં ટેકનોલોજી ને જી સર. ગુજરાત ટેકનોલોજી એનું યોગદાન તમે પોલીસ ખાતામાં કેવી રીતે આપી શકો? જી શું સર. આપી શકો? ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ ઘણી બધી ફિલ્ડમાં ઉપયોગી થઈ રહ્યું છે. એ જ રીતે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આઈટીનો યુઝ કરવા માટે પેપર વર્ક છે એને મિનિમમ કરીને આખા ડિપાર્ટમેન્ટનું ડિજિટલાઇઝેશન કરવામાં યુઝફુલ થઈ શકે છે. તે જ રીતે ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ અલગ અલગ ડેટાબેઝ જેમ કે વિક્ટિમ્સ અને ઓફેન્ડર્સના ડેટાબેઝને અલગ કરીને એક ચોક્કસ પેટર્ન કે કોઈ એક ચોક્કસ વિસ્તારમાં કે એક ચોક્કસ એજ ગ્રુપમાં કઈ રીતે કાર્યરત કરે છે તો એ એનાલાઇઝ કરવા માટે ડેટા એનાલિટિક્સ કરીને એક ટેકનોલોજી આવે છે એનો યુઝ કરી શકીએ સર. તે જ રીતે એક બીજો વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી અને ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટી છે તો એનો ઉપયોગ આપણે કોઈ પણ ક્રાઇમ સીન હોય છે એને रिक्रिएट કરવા માટે સર આપણે યુઝ કરી શકીએ. रिसेंट टाइम में एक सीन क्रिएशन में एक वारदात हो गई. कैन यू एक्सप्लेन? जी सर, मेटावर्स फेसबुक द्वारा जो भी मेटावर्स है उसको डिजिटली लोगों को और भी ज़्यादा वर्चुअली कनेक्ट करने के लिए ये एक सीन रिक्रिएशन का हो रहा है फेसबुक द्वारा. ओके. एक कंपनी ने क्लेम किया है कि मेटा उन्होंने रजिस्टर्ड कर रखा है. So how is it possible if a company says Meta is his proprietary, Facebook कैसे कर सकता है? कौन से लॉज का ये इन्फ्रिंजमेंट है? जी सर, ये आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत जो भी कॉपीराइट होता है उसका वायलेशन बोल सकते हैं हम. और इन्फ्रिंजमेंट के अलावा दूसरी जो कंपनी है जो मेटा का यूज़ कर रही है वो ये आईपीआर के जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रिप्स है उसके अंतर्गत केस रजिस्टर करवा सकती है सर. पुलिस के पास नहीं आने की जरूरत है? पुलिस के पास अगर वो लोकलाइज हो इंडिया का तो वो जरूर से करवा सकती है सर. सर. અચ્છા, પીઆઈ તરીકે તમે સિલેક્ટ પોલીસ ખાતામાં આવવાનું કારણ શું તમારે? જી સર, આ જે જોબ છે એ સેવા સાથે સારો પગાર અને એક જોબ સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ કરે છે સર. એની સાથે આ જોબ મેક્સિમમ હ્યુમન ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઈડ કરે છે. જ્યારે કોઈ પણ કંઈ નાગરિકને સમસ્યા થઈ હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ આવીને એનું સોલ્યુશન હું મારું પ્રોવાઈડ કરવામાં યોગદાન આપી શકું સર. જ્યારે બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ ડાયરેક્ટલી પોસિબલ નહીં થાય સર. એ તમે શું કહો છો કે સેવા કેવી રીતે આમાં શેની સેવા? સર, કોઈ પણ પોતાની રજૂઆત લઈને આવે તો હું એને મેક્સિમમ સારી રીતે સાંભળીને સારી રીતે તપાસ કરીને અનબાયસ્ડ મેનરમાં તો સર એ એક પ્રમાણે સેવા જ થશે. નહીં, તમારે પીઆઈ તરીકે સેવા કરવાની જરૂર જ નથી. તમે તો કાયદાને બંધાયેલા છો. પાર્ટ ઓફ ડ્યુટી. અને તમારે તો હા એમ જ તમે સેવા શું કામ સેવા કરવી જ છે. તો 2017થી આપ ફ્રી છો તો એનજીઓ છે, આ છે તે છે,
સંસ્થા ચલાવો અને આમાં આવવાની જરૂર શું છે? સર NGO સાથે જોડાવામાં કે કોઈ પણ બીજી રીતે સેવા કરવામાં પ્રોબ્લેમ એવો આવે છે કે જે પણ ઈચ્છિત સ્કોપ હોય છે એમાં બહુ વધારે ઓથોરિટી સાથે કાર્ય કરવા નથી મળતું, એટલે બહુ વધારે મોટા પ્લેટફોર્મ પર હું પ્રભાવ ના પાડી શકું સર. ત્યારે જ્યારે ક્લાસ 1 અધિકારી તરીકે હું એ મોટા સ્તર પર મોટા વિવિધ સ્કોપમાં હું સેવા માટે યોગદાન આપી શકું છું. અચ્છા, એટલે તમે PI તરીકે તમારો પ્રભાવ આપવા માટે માંગો છો? મારું યોગદાન સર, પ્રભાવ નહીં. નહીં, એટલે આ તો હું પૂછું છું, પ્રભાવ કે યોગદાન? યોગદાન સર. યોગદાન, એમ ને? So who is bigger, Mahatma Gandhi, Sardar Patel or Kiran Bedi? Sir, all three are better in their own field, sir. We can't compare. किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, किसका प्रभाव ज़्यादा है इंडिया पर? यस सर तीनों का है ऐसा. वैसे इंडिपेंडेंस के लिए गांधी जी का बोल सकते हैं, वैसे रियूनियन यूनिफिकेशन के लिए सरदार जी का बोल सकते हैं सर. वैसे भी पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए किरण बेदी जी का बोल सकते हैं. तो सर तीनों खुद के क्षेत्र में बेस्ट है सर. तो आपको बनना हो तो इनमें से किसके जैसा बनना चाहेंगे? सर मैं किसी और को फॉलो ना करके मैं खुद का एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने की सर कोशिश करूँगी. नहीं, इसमें 3 में है बनने का है तो आपकी तो अलग आइडेंटिटी आप खड़ी करेंगे जी सर. लेकिन इसमें 3 में से किसको चूज करेंगे? सर मैं तीनों से कुछ कुछ ग्रहण करूँगी. जैसे मुझे लगता है आप एक्सट्रीमिस्ट स्वभाव के हैं. आप कह रहे हैं ये तीनों को फॉलो नहीं करेंगे. कल को नक्सल भी यही कहते हैं कि इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे. कश्मीर के लोग कहते हैं कि इंडियन फ्लैग को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना देश बनाएंगे, नया बनाएंगे. तो ऐसे लोग तो सिस्टम के लिए, व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है. नहीं सर, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं किसी को मतलब किसी एक को फॉलो करके एक्सट्रीम नहीं बनूंगी. जो भी अच्छा है तीनों में से ग्रहण करने का प्रयास करूंगी सर. तो 3 को फॉलो करके एक्सट्रीम बन सकते हैं? बन सकते हैं, पर तीनों की जो मॉडरेट वैल्यू है वो लिया जाए तो नहीं बन सकते सर. एक के है अहिंसक गांधी जी की, जी सर. दूसरी सरदार जी की है फोर्स कि आप ये पसंद करने का है, नहीं तो हम करवाएंगे. जी सर. और किरण बेदी एक महिला ऐसी है कि वो अलग टाइप की है. उसने महिला को अपना अधिकार क्या है, कैसे नौकरी कर सकते हैं वो बताया है. तीनों अलग अलग सिद्धांत के हैं. फिर भी हम पूछते हैं कि आपको 3 में से पसंद करने का है, एक ही चूज करने का है, तो किसको पसंद करें? जी मैं किरण बेदी जी को चूज करूंगी. क्यों? क्योंकि सर उनने जो समाज में एक महिला के लिए जो भी कार्य किया है और पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए जो भी कार्य किया है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ सर. इसमें तीनों में महिला आती है. गांधी जी को है बहन जी है, वो बहन बोलते थे और उसको अधिकार बहुत दिया है समाज में. सरदार भाई ने बहन जी को था कि सब कुछ उनको था, तो थोड़े पैसे थे वही रखा और उसको भी अलग दे दिया था. तीनों महिला काम करती थी. जी सर. किरण बेदी जी ने निडरता का जो गुण दिया है ना, वो उससे मैं ज़्यादा आकर्षित होती हूँ. अभी क्या करते हैं? एज अ फीमेल. अभी क्या करते हैं किरण बेदी जी? वो अभी पॉलिटिक्स में है. अभी पॉलिटिक्स में. इनके पहले क्या थे? IPS थे सर. IPS के बाद क्या थे? IPS के बाद गवर्नर थे. कहाँ के? एक यूटी के थे सर. मैं अंदाजा लगा सकती हूँ गोवा के थे सर. मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इस बारे में. गोवा. ओके. ऐसा कौन सा बनाव है कि किरण बेदी का नाम आया? किरण बेदी को पहचानते नहीं थे, वो तो IPS थे, ठीक है, अपनी ड्यूटी करते थे. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि किरण बेदी आइडियल हो गई? सर जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैंने सुना है और पढ़ा है किरण बेदी जी के बारे में, तो उसमें एक ऐसा इंसिडेंट था कि जहाँ एक हिंसात्मक ग्रुप था वो आ रहा था और उसके जो भी साथ में जो टीम थी उन लोगों ने पीछे हट कर दिया था, पर वो अड़ग रही थी. तब से वो ज़्यादा ऐसे. एक पुलिस ऑफिसर, महिला पुलिस ऑफिसर होके आप पुरुष प्रधान देश है, जी पुलिस स्टेशन में जाके महिला के लिए क्या करेगी?
सबसे पहले मैं ये इंश्योर करने का कोशिश करूँगी कि जो भी महिला कंप्लेंट लेके आती है वो अनबायस मैनर में उस कंप्लेंट रजिस्टर किया जाए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही नहीं होगा तो आगे की जो भी कार्यवाही होगी वो अटकी पड़ी रहेगी सर। तो सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो भी अनबायस मैनर में जो भी रिक्वायरमेंट है रजिस्टर करने की वो की जाए। और डिपार्टमेंट के अंदर जो भी महिलाएं कार्य करती है उस महिलाओं को बेसिक जो एमिनिटीज़ है या डिपार्टमेंट के अंदर ही उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो मैं ये इंश्योर करने की कोशिश करूँगी कि एक एनोनिमिटी के सिद्धांत पे वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाए। ऐसी तो काफ़ी महिलाएं गलत यूज करती है, कंप्लेन करती है कि भाई इसने ये किया, इसने ये किया, ये भी होता है ना। होता है सर, पर वो प्राइमा फेसी एक आइडिया आ जाता है, और अगर उनका जो भी आरोप है वो ग्रेव है तो उसमें एविडेंस ज़रूरी है सर। आइडिया कैसे आ जाता है सर? साथ में कार्य करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन जज कर सकते हैं कि, और ग्रेव कोई भी ऐसा हो कि आरोप लगाया है तो उसमें आइडिया के बेसिस पे नहीं पर उसमें एविडेंस भी इतना ही ज़रूरी होगा सर। मुझे लगता है कि आप एडवोकेट होते, एडवोकेसी में, ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म में तो आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने आप को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेवा का भाव तो मुझे नहीं दिखता है। मुझे लगता है आप पावर के भूखे हैं। नहीं सर, पावर से ज़्यादा सेवा और साथ में प्रेस्टीज है। प्रेस्टीज है जो मेरे को आकर्षित करती है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि जब भी एक लेडी ऑफिसर रहती है और वो अच्छी तरह से कार्य करती है तो समाज में अच्छे से वो खुद भी नाम पा सकती है और समाज में उतना ही अच्छा प्रभाव डाल के समाज को अच्छी दिशा में प्रेरित कर सकती है सर। रिसेंट टाइम में काफ़ी एक स्टेटस वाले व्यक्ति ने बोला कि महिलाएं सबसे ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित थाने में पाती हैं। ऐसा क्यों? अगर ऐसी बात कही गई है कि थाने जो है हमारे सुरक्षित नहीं है महिलाओं को लेकर के, तो ऐसा क्यों? सर मेरा इसमें ओपिनियन ऐसा है कि बहुत सी वल्नरेबल महिलाएं हैं, वो खुद को सक्षम साबित करने में, ऐसा नहीं है सिर्फ पुलिस थाने में, कोई भी पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे वो कार्य कर रही है उसमें वो असुरक्षित महसूस करती है क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठा पाती है सर। इसलिए ऐसा मैं नहीं बोल सकती, या मेरा ओपिनियन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पुलिस थाने में ही खुद को असुरक्षित पाती है। ऐसी भी महिलाएं इक्वली है जो ऐसे ह्यूमन एनवायरनमेंट में भी उतनी सुरक्षित महसूस करती है, बिकॉज उसको खुद की कैपेबिलिटी पे और सिस्टम पे भरोसा है सर। इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि 90% महिलाएं किसी न किसी ईव टीजिंग, किसी न किसी बदतमीजी की शिकार रही हैं, वो डोमेस्टिक कंटेक्स्ट हो, मार्केट में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो। क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ, और यू नो समवन जिनके साथ ऐसी घटना हुई? जी सर, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। इसमें कॉलेज के टाइम पे मेरा पूरा जो ग्रुप था गर्ल्स का था, हम लोग अपनी मस्ती में थे और 2 लड़के ने आके अब्यूज़ कर दिया हमें। उनको ऐसा लगा कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस के बाद जो मेरा पुलिस स्टेशन के प्रति जो नज़रिया था ना, वो बहुत चेंज हुआ, क्योंकि उसी इंसिडेंट के बाद हम लोग फरियाद करने के लिए गए थे। तो एक पहले पता नहीं था कौन सी जगह पे जाना होता है, तो हम लोग नज़दीक में जो भी पुलिस स्टेशन था उधर गए थे। उधर से हमको इतना रिस्पांस नहीं मिला जो हम एक्सपेक्ट करते थे, पर उन लोगों ने हमको डायरेक्शन दी कि तुम लोग महिला पुलिस स्टेशन में जा सकते हो इस प्रॉब्लम के लिए। उधर जो रिस्पांस था वो सर बहुत अच्छा रहा, और अगर महिलाएं खुद आवाज़ उठाए कि नहीं हमारे साथ ये हुआ है, तो ये जो भी ईव टीजिंग की या स्टॉकिंग की जो भी समस्या है वो सर 100% कम की जा सकती है सर। उसके लिए महिलाओं को खुद को आना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट भी एक्सपेक्ट करती है कि महिलाएं आके खुद के लिए बोले, तभी वो लोग कार्य कर सकेंगे। लेकिन आप थाने में गए तो वहाँ पे भी तो रिपोर्ट लिखा जा सकता था। जी सर, लिखा जा सकता था। उन लोगों ने FIR लिखी थी सर महिला पुलिस स्टेशन में। पहले वाले पुलिस स्टेशन ने क्यों नहीं लिखा? मुझे सर ऐसा लगता है कि ये जो इशू था वो महिला पुलिस स्टेशन में डील किया जा सकता है सर। मैं श्योर नहीं हूँ। ऐसा कोई कानून है सर? इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है सर। What is zero FIR if you have some idea? जी सर, ज़ीरो FIR ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे घटना हुई है, गुनाह की या कोई भी घटना हुई है, उसी के ज्यूरिसडिक्शन में FIR को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है।
कोई भी जगह पर अपन FIR रजिस्टर करवा सकते हो, वैसे FIR को 0 FIR कहते हैं सर। अभी 21वीं सदी के क्राइम अलग हो गए हैं, वाइट कॉलर क्राइम हो गए हैं जी सर। अगर उसको रजिस्टर करवाना हो तो क्या प्रोसेस होगा और कैसे करेंगे? जैसे क्राइम नहीं हो रहे हैं जस्ट बिकॉज के डिजिटलाइजेशन और ये सब ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसी का यूज़ उसको कम करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे मैक्सिमम IT का यूज़ कर सकते हैं कि उन खुद की जो भी कंप्लेन है वो ऑनलाइन रजिस्टर हो, तो ये प्रोविज़न कर सकते हैं। फिर डिटेक्शन के लिए जो भी मशीन विजन और ये सब टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके एक जो भी वाइट कॉलर के लिए पैटर्न हो रही है नहीं, कि कोई पर्टिकुलर एक पैटर्न में ऑफेंस किया जा रहा है, तो वो एनालाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी का सर यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, मोदी गवर्नमेंट सेज मेक इन इंडिया, वो फिर गवर्नेंस की बात करते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, वो इनोवेशन की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें छोड़ करके एक इंजीनियर पुलिस में आना चाहता है। पुलिस में तो एक BCom वाले भी जा सकते हैं, BA पास वाले भी जा सकते हैं। डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग द टैलेंट, जिसमें गवर्नमेंट का, एक सोसाइटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है? अपने PDS पे काम किया, एक बहुत बड़ी समस्या है पब्लिक डिलीवरी सिस्टम ऑफ एनी सर्विसेज, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज। तो मुझे लगता है कि आपके जैसे लोग वहाँ हो तो बेहतर कर पाएंगे। जी सर, अगर मैं मेरे फील्ड में कार्य करूं जो कि IT इंजीनियरिंग का कार्य है, तो वो बहुत स्कोप लिमिटेड हो जाता है। IT के रिलेटेड मैं सर्व कर सकती हूँ। आप एक कोडिंग बना सकते हैं, एक प्रोग्राम बना सकते हैं सर्वेलेंस का, देश की पूरी पुलिस इस्तेमाल कर सकती है सर। अनलिमिटेड आप एम्पावर कर सकते हैं। उसमें ह्यूमन इंटरफेस का स्कोप कम रहता है सर, क्योंकि ऊपर से जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है। जबकि इसमें मेरी IT फील्ड का यूज़ तो होगा ही होगा, पर उसके अलावा और जो भी समस्याएं होती है उसको मैक्सिमम मैं खुद सॉल्व करने का प्रयास कर सकती हूँ। उसमें मैक्सिमम ह्यूमन इंटरफेस प्रोवाइड होता है। IT में मैं कार्य करूँ तो मैक्सिमम मेरे को डेस्क कार्य करने को मिलता है। यू आर एबल टू अकम्प्लिश योर मिशन, कि आपको दूसरों की लाइफ को आप इम्पैक्ट करके ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। मीडियम आपने टेक्नोलॉजी यूज़ किया, क्योंकि सर एंड तो दोनों में मिलेगा, पर मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो डेली बेसिस पे प्रभाव डाल सकेगा वो मीन्स होगा। तो मीन्स के लिए मेरे को इच्छा है कि मैं ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा रखूँ। IT के फील्ड में मैक्सिमम डेस्क जॉब रहेगा सर, तो मैं मैक्सिमम ह्यूमन इंटरफेस के साथ कार्य नहीं कर सकती। बिकम अ टीचर, अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज। जी सर, उसमें पर मेरे को इतना स्कोप भी नहीं मिलेगा। मैं क्लासरूम के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूंगी, जबकि PI की जॉब में मेरे पास SC कम्युनिटी का आ सकता है, ST कम्युनिटी का आ सकता है, महिला आ सकती है, एक बच्चा आ सकता है, एक सीनियर सिटीजन के लिए मैं कार्य कर सकती हूँ सर। ઓકે, તમે મહિલા અધિકારી તરીકે તમે કીધું કે મહિલાઓ આગળ આવે ને વધારેમાં વધારે કમ્પ્લેન કે જે હોય, તો એ અવેરનેસ ફેલાવવા માટે તમે PI તરીકે કઈ રીતે અવેરનેસ વધારશો કે જેથી મહિલાઓ વધારેમાં વધારે આગળ આવે? એવા કયા 3 સ્ટેપ લેશો કે જેથી મહિલાઓ અવેર થાય આ બધી બાબતો, ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ છે કે જે છે એના માટે? આપણો સમાજ સર ડાયવર્સિફાઈડ છે, એવી રીતે મહિલાનું જે ગ્રુપ છે ને એ ડાયવર્સિફાઈડ છે। એટલે આપણે જે મહિલા ફોન યુઝ કરે છે અથવા ડિજિટલી કનેક્ટેડ છે, તો એના માટે મેક્સિમમ એવા ઇનિશિયેટિવ લઈ શકીએ કે આપણે ડિજિટલી કેમ્પેન લોન્ચ કરીએ મોટા પાયે। પછી બીજી મહિલા હોય છે કે જે એટલો બધો ફોન યુઝ નથી કરતી, તો એના માટે NGO સાથે કનેક્શન સ્થાપીને આપણે શેરી નાટકો જેવું કંઈક કરી શકીએ કે જે ત્યાં લોકલાઇટ વિસ્તારમાં લોકોને કાયદા અને પોતાના અધિકાર વિશેની માહિતી આપે સર। અને ત્રીજી વસ્તુ એવી છે કે જે બાળકો છે શાળામાં, એ લોકોને પોતાના શિક્ષણ સાથે સાથે જે સિવિક વેલ્યુ આપવામાં આવે, તો એના માટે જેન્ડર સેન્સિટાઇઝેશન કરવામાં આવે કે જેના દ્વારા એ પોતાના ઘરેથી પોતાની માતાને, બહેનને પોતાના અધિકાર વિશે સમજાવે સર। તો હું એ દિશામાં કાર્ય કરવાનું વિચારીશ સર। હવે પોલીસમાં તમને લાગે છે કે મહિલા અધિકારી તરીકે કઈ કઈ તકલીફો પડશે, તમે એવું ગેસ કરી શકશો? हाँ जी सर, જે રીતે મેં ડિપાર્ટમેન્ટને જોયું છે અને લોકો પાસે કાર્ય વિશે સાંભળ્યું છે, એના પરથી હું એવું કહી શકીશ કે 24/7ની જે જોબ હશે અને ફિલ્ડ જોબ હશે એ ક્યાંક ને ક્યાંક કશે તકલીફ અપાવી શકે એમ છે, પણ સર એના સામે એટલા સોલ્યુશન પણ હોય છે। જેમ કે કારણ કે સ્ટ્રેસફુલ જોબ કોમ્પિટિટિવ એરામાં બધા સેક્ટરમાં રહેવાની છે, એટલે સ્ટ્રેસ ફેક્ટર બધે રહેવાનો છે, પણ આ કાર્યમાં મને જે સેલ્ફ સેટિસ્ફેક્શન મળશે સર, તો એના સામે મને જે સ્ટ્રેસ દેખાશે એ ઓછો હશે સર।
તમને એક સિચ્યુએશન આપીએ કે તમારા ડ્યુટીના અવર્સ છે, તમારા વિસ્તારમાં કંઈક વાયલન્સ થયું છે કે હડતાલ જેવું છે, તમારા સિનિયર અધિકારી તમને બોલાવે છે, બરાબર એ જ અરસામાં કે તમારું બાળક છે જેને તમે હોસ્પિટલ લઈ જાઓ છો કે બીમાર છે, અને તમે એની સાથે છો, એની સાથે તમારા હસબન્ડ પણ છે ને એ બહાર ગયા છે, તમારો પરિવાર પણ બહાર છે, અને બીજી બાજુ તમને સિનિયર અધિકારીના ફોન આવે છે કે આ જગ્યાએ તાત્કાલિક પહોંચવાનું છે, તો આ સિચ્યુએશનમાં તમે શું કરશો? સૌથી પહેલાં હું એ એન્શ્યોર કરવાની કોશિશ કરીશ કે મારા હસબન્ડ અવેલેબલ નથી તો મારો કોઈ બીજો ફેમિલી મેમ્બર યા કોઈ ફ્રેન્ડ કે જેના પર હું વિશ્વાસ કરી શકું કે તાત્કાલિક રીતે બાળકને જે પણ જરૂરિયાત છે હોસ્પિટલ પર પહોંચાડવાની એ પૂરી કરે. એ પૂરી થતાની સાથે જ હું ફોન ઉપર એક કનેક્શન બનાવી રાખીશ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે કે લિંક કોઈ ના તૂટે. વચ્ચે કોઈ એવી કેઝ્યુઅલિટી આવી જાય કે જે અનએક્સપેક્ટેડ હોય તો એના માટે હું એન્શ્યોર કરીશ, અને જે જ રીતે એ જ ક્ષણે કે બાળકને હું વ્યવસ્થિત રીતે પહોંચાડી દઉં, હું તરત જ જે સ્થળ બતાવવામાં આવ્યું છે મને પહોંચવા માટે હું ત્યાં પહોંચવાની કોશિશ કરીશ. ડ્યુટીને પ્રાધાન્ય આપશો તમારા પરિવાર પહેલાં કે પરિવારને પ્રાધાન્ય? સર, હું પહેલાં કોઈ પણ સમયમાં એવી કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં હું એ એન્શ્યોર કરવાની કોશિશ કરીશ કે હું બેલેન્સ બનાવી રાખું સર. પણ જ્યારે પણ એવું લાગે કે નહીં સિચ્યુએશન બહુ જ વર્સ્ટ થઈ ગઈ છે અને એના લીધે પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ છે બહુ જ વધારે અફેક્ટ થઈ રહ્યું છે નેગેટિવલી, તો હું ત્યારે સર પબ્લિક મારી જે ડ્યુટી છે એને હું પ્રાથમિકતા આપીશ સર.